आप सारे पेरेंट्स, आज हमारे स्कूल में जो एनईपी के ऊपर एक सेशन हो रहा है जिसमें यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स। आज हम शुरू करेंगे जी एनईपी के बारे में। और एनईपी जैसे कि आप सारे जानते हो, इट्स फुल फॉर्म इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि आफ्टर 34 इयर्स जो है इंडिया में आई है दोबारा से। इट वाज 34 इयर्स पहले ही आई थी एट द टाइम ऑफ मिसिस इंदिरा गांधी, उस टाइम पे ही आई थी। और अब उसके बाद इट वाज एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी एंड नाउ मिस्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन हैज प्रेजेंटेड इट अगेन विद सम अमेंडमेंट्स, विद सम चेंजेस इन इट जो कि रिक्वायरमेंट थी आजकल के एजुकेशन के सिस्टम की। आई होप यू ऑल गॉट इट। Yes. Now we will start about the national education system. Please pay attention. Now, the vision of the policy. Vision of the policy includes what is in the policy. क्या क्या चेंजेस हुए हैं, व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग नाउ, व्हाट द सीबीएसई इज रिक्वायर्ड नाउ टू डू द चेंजेस इन द सीबीएसई सेक्शन. Develop an education system deeply rooted in Indian ethos which has a capability to provide high quality education to compete in the global world. Now the government is डिमांडिंग कि जो हमारे बच्चे हैं दे शुड परफॉर्म ग्लोबली। ये नहीं कि हमारे बच्चे सिर्फ दिल्ली तक, बॉम्बे तक, गोवा तक ही रहे, बट पूरे ग्लोब में दे शुड कम्पीट और उनको प्रूव करना होगा अपने आप को। ठीक है। द करिकुलम एंड पेडागॉजी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हैव अ डीप बॉन्ड विद द कंट्री। करिकुलम जो है, जो हमारा सिलेबस है, जो पेडागॉजी मीन्स टीचिंग स्किल्स, जो टीचिंग स्किल्स हैं हमारे, वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके टुवर्ड्स, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो हमारा उसके टुवर्ड्स एज इंडियंस हमारी क्या ड्यूटीज हैं वो भी हमें प्रोड्यूस और प्रोवाइड करवाई जाएंगी इस विजन में। डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वेलबीइंग, thereby reflecting a truly global citizen. Every citizen should be aware about the responsibilities. उसको पता होना चाहिए कि who I am, what are my responsibilities, और every child now should be aware about this by the vision of the policy. I hope you all are clear. Key principle जो है जी इस NEP के, respect for diversity and local context, equality and inclusion, community participation. Community participation is must. Why? Because a teacher alone cannot provide a quality education. You are parents, you all are equally you are participants in the education of children, because a child stays here in the school only for 6 hours, but for 18 hours a child is at home. So mother is a first teacher and school is a first institution of a child. So keeping that in mind, community participation is must. Use of technology, as you are aware कि कोविड में कितना ज़्यादा we have used technology. It would be in the usage in the coming years also. Use of technology. Emphasize conceptual understanding. As you know कि education जो है, we are seeing, I am also a mother, you are also mothers, कि कैसे हमारे बच्चे जो हैं they are not clear about the concepts. Although in the first class, second class they are taught conjunctions, they are called prepositions, they are taught other concepts of the language, but still as parents we are satisfied that they are getting everything clear. Are you satisfied? Are you parents satisfied that they all are clearing their concepts very well? No. Because at that stage when they are at first or second, they are not able to clear about the concepts. जो चीजें हमें 8th में 9th में पढ़ाई जाती थी वो चीजें आज बच्चों को फर्स्ट में पढ़ाई जा रही हैं. Why? They are not clear about the concept. Now the CBSE is planning, now the National Education Policy is planning that the stress should not be paid upon
upon the syllabus, but the stress should be paid upon the conceptual learning. The person, the child, the student should be clear about the concept. What the thing is being said by the teacher, it should be clear in the mind of the student. So, emphasize conceptual understanding. Unique capabilities. हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं. A child who is very well in drawing may not be well in studies, and the one who is well in studies may not be well in drawing or pottery. So the unique capabilities all the students have, we as a teacher and you are as a parents should have the capability to recognize the abilities of a child. So the stress should be laid upon the unique capabilities. Critical thinking and creativity, इसके ऊपर काम किया जाएगा. Continuous review. Continuous review means teachers as well as parents, they would be responsible कि कैसे जो है एक रिव्यू किया जाए एक बच्चे की जितनी भी ग्रोथ है ड्यूरिंग द होल ईयर. इट वुड बी जज्ड बाय सम असेसमेंट प्रोसीडिंग्स presented by the government, presented by the CBSE board, as well as now the parents would also be the great participants in judging the assessment process. Continuous review. Transforming curricular and pedagogical structure. Now the education system, as you have all known, it has changed. Now we are witnessing a new education policy. So पहले जो सिस्टम था कि फर्स्ट से लेके 10 साल 10th तक एंड +2 ऐड करती तो +2 तक का सिस्टम था. Now the pattern has changed. Please parents, it should be clear to you. Now the concept has come. This concept has changed. 10+2. Now the concept is 5+3+3+4. ठीक है जी. In this section it is divided like this कि 3 to 8 years का जो बच्चा है वो पहले तो 3 years he will go to preschool in an आंगनबाड़ी जाएगा वो या फिर preschool में जाएगा और first और second he will come to school and that stage, this 5 year stage is called fundamental stage. Fundamental मतलब root stage. This would be called root stage of a child. इस टाइम पे बच्चे की प्ले वे तरीके से उसकी रूट की नरिशमेंट की जाएगी. He would be nurtured here. Fundamental stage. Now the second stage is coming. It would include 9 to 11 years. Under this third class, fourth class and fifth class. इस साल में इस स्टेज पे इसको preparatory stage. It means the stage where we prepare something. यहाँ पे बच्चा जो है प्रिपेयर किया जाएगा, उसको कंसेप्चुअल लर्निंग थोड़ी बहुत दी जाएगी, वो भी प्लेवे मेथड में, वो भी इतनी ज़्यादा बर्डन अब नहीं होएगी. प्लेवे मेथड में प्रेपरेटरी स्टेज, हियर द चाइल्ड विल बी प्रिपेयर फॉर द फर्दर एजुकेशन. नाउ 12 to 14 years will be covered under 6th class, 7th class and 8th class. It would be considered as middle stage. 8वीं तक बच्चा जो है, 8वीं तक जो बच्चा है उसको नॉलेज दी जाएगी इन्हीं कॉन्सेप्ट को जो कि प्रेपरेटरी में रेडी किए गए थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और इलेबोरेट किया जाएगा और पैसेज बाय पैसेज ही वुड बी गेट प्रिपेयर्ड. 15 से 18 साल की एज है जो वो 9th में, 10th में, 11th में और 12th में कवर करेगा. इस स्टेज को सेकेंडरी स्टेज की जाएगी. डियर पेरेंट्स, एज यू नो कि पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1st to 5th तक थी प्राइमरी स्टेज और 5th to 8th तक थी हमारी सेकेंडरी स्टेज और फिर 8th से ऊपर थी हमारी सीनियर सेकेंडरी स्टेज. नाउ यू हैव नोन द चेंज के व्हाट द चेंज हैज अकर्ड इन द NEP के all the system has changed and it has divided into these parts. All are clear? Yes. Secondary stage on this stage 11th and 12th जो stage है, now the different subject will be given to a student. पहले तो ऐसे होता था कि if a child is opting science, he is not able to opt for arts. But now the CBSE has changed the pattern by understanding the root cause के a child who is performing well in the science subject, he can also perform well in the arts also. That's why now they are taking the both the option. Now a student who is doing science can do arts also. Now the collaboration between the science subject and the art subject is going on in the CBSE. Is it clear?
clear to you all? Yes. Please. Shift to competency-based teaching, learning and assessment. As we have studied on the first slide, recent slide also, all these are things. Promoting critical and creative thinking, aligned to 21st century in classroom. It was clear in the previous slide also that stress would be paid upon the critical thinking as well as on the creativity. Shifting traditional assessments to competency focused. जो ट्रेडिशनली जो हमारी एजुकेशन की ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं उनको भी चेंज किया जाएगा नाउ इन द 21st सेंचुरी एजुकेशन. ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा वो किस तरह से, बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. उसकी हर जो भी अचीवमेंट है दैट वुड बी ट्रैक्ड नाउ. डिजाइन टूल्स एंड रिसोर्सेज को किया जाएगा जी. रिड्यूसिंग करिकुलम टू कोर एसेंशियल्स टू मिनिमाइज रोड लर्निंग. Our children keep on rote learning. We are seeing as a parents. Okay, if you ask your child as a mother, okay, beta, what is the meaning of this subject? I don't think most of the students will be able to give you the meaning because they give stress. Children as well as teachers are giving stress on the rote learning. Now the CBSE is deciding that curriculum will be reduced. करिकुलम अगर रिड्यूस हो गया, अगर सिलेबस रिड्यूस हो गया, नाउ द स्ट्रेस विल बी ऑन द, वेयर विल बी द स्ट्रेस, रोड लर्निंग विल बी डिनाइड फ्रॉम द सिलेबस. रोड लर्निंग देयर वोंट बी नाउ. अब यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई. प्रमोटिंग स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन क्लासरूम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट which pays attention towards the every aspect of education, which consists of physical, which consists of intellectual, which consists of spiritual, and which consists of what you can other any you can say mental. So these 4-5 जो डेवलपमेंट के अंदर आएगी वो अब आएंगी जी. होलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चों को स्पोर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे एज वेल एज आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स विल बी प्लान्ड फॉर द स्टूडेंट्स. हाँ जी. These are the stages as I have performed in front of you on the board. So ma'am, please. Now the one concept that is coming towards the CBSE, it is a new concept that is early childhood. थोड़ा नीचे उठा दो. Early childhood care and education, ECCE. It is a new term that is used by CBSE nowadays. The foundation of learning. Early stage, early childhood is a root period of a child. As we all know that the root is being nourished at the stage of early childhood. तो इसके goals क्या हैं? Ensuring that all children entering grade 1 are school ready by 2030. मैंने आपको पहले ही बोला कि 2020 में we have got the new education policy. इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है जो ये सारी जो है आएगी इन प्रोसेस, इट वुड टेक अप्रोक्सीमेटली 10 years. Now the government is saying that the all school going children entering grade 1 में पहली क्लास में जिन बच्चों ने जाना है, जो कि एबल हैं जाने के, जिनको के जाना चाहिए, बाय सम केसेस दे आर नॉट एबल टू गो, उनकी चाहे जो भी रीजन है दे कांट गो, पर वो 2030 तक दे ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड टू एंटर इन द ग्रेड 1. मतलब कि 10 साल की इम्प्लीकेशन में कोई भी ऐसा बच्चा रहना नहीं चाहिए जिसको के हम एजुकेशन ना प्रोवाइड करवा पाए. इट इज द गोल ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर ऑल ऑफ यू? Attain optimal outcome in the domain of physical and motor development, cognitive development, socio-emotional development, cultural, artistic development, and the development of communication, early languages, literacy and numeracy. तो सारे बच्चों को एक तो न्यूमेरेसी आनी चाहिए, बेसिक स्किल जो है नंबर
नंबरिंग के, वो बच्चे को फर्स्ट स्टेज तक आ जाने चाहिए। लिटरेसी, अच्छा बच्चों को जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आ जाने चाहिए। कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की फर्स्ट क्लास तक बाय प्लेइंग एंड गेट मेथड से वो आ जानी चाहिए। ठीक है जी, ये इसके गोल्स हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के। ECCE करिकुलम एंड पेडागोजी डेवलपमेंट होएगी टू प्रिपेयर इनिशियल कैडर ऑफ हाई क्वालिटी ECE टीचर्स, प्लान टू इंट्रोड्यूस 6 month certificate program in ECE, 1 year diploma program covering early literacy, numeracy and other relevant aspects of ECE. Minimum qualification of teachers could be even +2 or above. अभी जो टीचर्स हैं, those teachers who are being recruited for this program, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होएगी 10+2। 10+2 के बाद दे कैन क्वालिफाई फॉर दिस जॉब, बट उनके लिए 6 months का एक कोर्स लगेगा जिसमें कि दे वर टॉट कि छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनको न्यूमेरेसी कैसे पढ़ानी है, या फिर ऑल द थिंग्स व्हिच आर मैंडेटरी फॉर अ स्मॉल लर्नर, फॉर अ फर्स्ट क्लास लर्नर, जो भी कुछ टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं दैट वुड बी कवर्ड इन 6 months प्रोग्राम। Introduction of a preparatory class before class 1 for children of age 5 years. Learning shall be based on play-based learning with the focus of developing. तो कैसे डेवलपमेंट होएगी? वैसे तो सेकंड क्लास तक ही there would be very less curriculum planned for the students, और जो बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ प्ले वे मेथड से ही अप टू 6 तक ही किया जाएगा सारा जो भी प्रोसीजर है अगले आने वाले सालों में। जबकि आज हमारे बच्चे सेकंड क्लास के बच्चे दे कैरी सो हैवी बैग और वो स्कूल जाते हैं, दे डोंट लर्न, पेरेंट्स कांट से, तो पर जो भी कुछ है नाउ दे आर वेरी बर्डन्ड, आवर चिल्ड्रन आर वेरी बर्डन्ड। नाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि उनके बर्डन को कुछ लो किया जाए, करिकुलम में थोड़े चेंजेस किए जाए और उनको बैकलेस स्टडी देके प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाए। Attainment of foundational literacy and numeracy by grade 3 in mission mode. फर्स्ट क्लास तक तो इन्होंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ टिल द ग्रेड ऑफ 3 अभी क्या क्या बच्चों को आना चाहिए, क्या करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए वो बुक प्रमोशन करेंगी, लाइब्रेरीज को वो एक्सपैंड करेंगी, नेशनल मिशन चलाया जाएगा फाउंडेशनल लिटरेसी के ऊपर और न्यूमेरेसी के ऊपर। Foundational literacy, what is foundational literacy? Foundational literacy is that you are able to at least read or write. This is foundational. A person, how much he is educated, we can only know if he is able to read a line, we can say that he is literate, वो पढ़ा लिखा है, हम कह देते हैं। तो बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी क्या है? बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी, दिस वुड बी द नेशनल मिशन ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। ठीक है, फाउंडेशनल स्किल्स बच्चों को आने चाहिए जी, लर्निंग स्किल्स उनके बढ़ावा उसको दिया जाएगा गवर्नमेंट के राही। 3 months प्ले बेस्ड स्कूल, 3 months प्ले बेस्ड स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट्स के लिए, नेशनल रिपोजिटरी हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज ऑन दीक्षा। दीक्षा एक ऐप है जी जिसके ऊपर जो टीचर्स के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो टीचर के जितना भी मटेरियल है वो डाला जाता है, हर टीचर कैन टेक दैट मटेरियल फ्रॉम द ऐप दीक्षा। तो वो दीक्षा के ऊपर भी हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज डाले जाएंगे गवर्नमेंट के राइट। Libraries would be maintained in the coming future days so that the teacher has the command that she can go or take any book or issue any book from the library. Curtailing dropout rates and ensuring universal access to education for all levels. Now, why the government is planning this NEP तो कितने साल से चली रही थी तो वो चलती रहती। Why the government is planning to change it? Why so many changes are being done in the NEP? The reason behind that there are so many dropouts. Dropouts होते हैं कि जब बच्चा जो है in between अपनी स्टडी को छोड़ जाता है। There can be any reason कि उसकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको स्टडी समझ नहीं आ रही है, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी है उसकी, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। नाउ द गवर्नमेंट इज डूइंग कि कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स, उस रेट को वो कम करना चाहती है कि ड्रॉप आउट ना हो बच्चे। उसके लिए क्या प्लान कर रही है? टू ब्रिंग चिल्ड्रन बैक टू स्कूल एंड प्रिवेंट चिल्ड्रन ड्रॉपिंग आउट इन द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी टेकन। एक तो उनको रेगुलर ट्रेन्ड टीचर्स दिए जाएंगे ईच स्टेज के ऊपर,
special care shall be taken to ensure that no schools remain deficient on infrastructure support. कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होएगा जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं होंगी. कोई स्कूल ऐसा नहीं होएगा कि our teacher is teaching under the tree or in the corridor, the children are sitting down. ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होएगा till 2030 because they are demanding 10 years for implementation of this NEP. Now वो कहते हैं कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होएगी. यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इन स्कूल बाय केयरफुली ट्रैकिंग स्टूडेंट एज वेल एज देयर लर्निंग लेवल्स in order to ensure that they are enrolled in and attending schools. ये भी ध्यान रखा जाएगा कि in the locality, in the society, how many students are जो कि फर्स्ट क्लास में जाने के लायक थे but still they are not getting education. उन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपना आई रखेगी और वो पूरा ध्यान रखेगी कि this child should be enrolled in the school while he is not. वो भी उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा. Have suitable opportunities to catch up and re-enter school in case they have fallen behind or dropped out. ये फैसिलिटी दी जाएगी कि जहाँ पे ड्रॉप आउट हो गया था, जिस भी स्टेज पे ऊपर ड्रॉप आउट हो गया था, अगर बच्चे ने 8th क्लास में अपना स्कूल जाना छोड़ दिया था, rather than putting him just behind the class कि अगर वो 8th में छोड़ा तो जाके उसको 6th 7th में ले because it was a drop out, उस चीज को छोड़ के उसको ये फैसिलिटी दी जाएगी कि ड्रॉप आउट जहाँ से हुआ था वहाँ से ही कैरी कर लो, तो वो आगे से वहाँ से ही पढ़ पाएगा. Community partnership in terms of expertise and infrastructural support. community की support होएगी जी, partnership होएगी. अब ऐसा नहीं होएगा कि parents जो हैं वो बिल्कुल ही छूट सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि now the school is responsible for the education. No, now the parents will equally they will be responsible for the education of the child क्योंकि उनको भी participation अब किया जाएगा. जैसे कि आज you all are participating in this session. Parents would in the future years also they would also be involved in the school procedures so that they should provide equal opportunities for the parents as well as for the teacher. Scope of school education will be broadened to facilitate multiple pathways of learning involving both formal and non-formal education modes. ओपन डिस्टेंस एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को जो कि बच्चे नहीं जा सकते हैं. those children who have some problem they are carrying up with their jobs and they have no time to go to the school, so उनके लिए ओपन स्कूल खोले जाएंगे जी. जो गवर्नमेंट है वो ओपन स्कूल खोलेगी, उनको स्ट्रेंथन्ड किया जाएगा क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा एक तो ओपन स्कूल है भी नहीं और अगर है भी हैं तो दे आर नॉट स्ट्रेंथन्ड. उनको इतनी ज़्यादा कहीं से भी जो है मोटिवेशन नहीं है या वही अगर मैं कहूँ एज अ टीचर तो आई हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट ओपन स्कूल्स क्योंकि उनको इतना ज़्यादा प्रमोट किया ही नहीं जाता. तो इन द कमिंग ईयर्स बिकॉज ऑफ द ड्रॉप आउट्स दिस थिंग ऑल्सो बी स्ट्रेस्ड अपॉन. यस मैम. Highlights of pedagogical structure. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी जी बच्चों को. किस चीज़ में बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंट है और टीचर कितना कॉम्पिटेंट है उस बेस के ऊपर एजुकेशन दी जाएगी इन द कमिंग ईयर्स. इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज आई हैव टोल्ड दैट इन द 11th and 12th क्लास वेयर यू आर सपोज टू चूज योर ओन सब्जेक्ट्स. Just like that they have told कि integration of subject होएगी. You can mix science with arts, you can mix arts with science. It would be in the coming years. Development of scientific temper. बच्चों को scientifically they were made more clear in the coming years with the help of technology. No silos among subject learning. No hard सेपरेशन बिटवीन करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज में कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं होएगी. एकेडमिक और वोकेशनल एजुकेशन में कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं होएगी. हार्ड सेपरेशन इन द सेंस कि जितना एकेडमिक हमारा कवर कर रहा है इन द कमिंग ईयर्स उतना ही हमारी वोकेशनल एजुकेशन कवर करेगी. जबकि अगर हम आज की एजुकेशन को देखें देयर इज नो नेम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. Is there vocational education? No. Our children have no skill in their hands. But in the coming years, stress will be paid upon that. जो academic and vocational education will be stressed upon. Science and humanities को mix कर
कर दिया जाएगा, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड एकेडमिक्स को भी मिक्स कर दिया जाएगा। एम्फेसिस इज ऑन डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग सिखाई जाएगी बच्चों को 6th क्लास से ही। 6th क्लास से ही द चिल्ड्रन विल बी एबल टू लर्न अबाउट कोडिंग और कंप्यूटर के स्किल्स उनको नॉलेज दी जाएगी और डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आज जो काम होएगा आगे से दैट विल बी ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड। बच्चे आगे आने वाले ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम जितना भी होएगा दे वुड डू ऑन द टेक्नोलॉजी बेस्ड गैजेट्स। Promoting states to enter into bilateral agreements with nearby states to hire language teachers. जो हमारी गवर्नमेंट है इट हैज डिसाइडेड कि जो बच्चा है उसको अप टू 5th क्लास तक जो लैंग्वेज अपनी है, जो मदर टंग है, उसमें एजुकेशन दी जाएगी। अभी जो बच्चों के ऊपर जो इतना स्ट्रेस है कि टीचर पे एम्फेसिस ऑन कि स्पीक इन इंग्लिश whether the child is able or not able to speak in English, but the teacher is putting stress on the child। और क्या होता है उससे उसके दिमाग में वो सारा कुछ स्ट्रेस्ड हो जाता है कि मैंने अब इंग्लिश में बोलना ही बोलना है, because the teacher is saying to speak me in English। Now that casuality now is removed by CBSE। Now it is stressing upon that the language which the child is carrying up to the 5th class वो बच्चा अपनी लैंग्वेज में पढ़ेगा। अगर वो पंजाबी उसकी मदर टंग है तो पंजाबी, अगर हिंदी है उसकी मदर टंग तो हिंदी। अगर किसी भी क्षेत्र में या किसी भी साइट में वेयर देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर कि उसकी लैंग्वेज में उसको अगर टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो वहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स देके वहाँ पे टीचर भी अपॉइंट किया जाएगा। सो दैट यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो लैंग्वेज के राही जो टीचर्स हैं दे विल गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इससे क्या होएगा कि हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, है ना, कि जो लैंग्वेज का टीचर एक जाके किसी और स्कूल में अपने लेक्चर्स दे रहा है तो कोई और उसका अगर फ्रेंड बनता है तो ही और शी फॉर्मली और इनफॉर्मली दे विल लर्न देयर लैंग्वेज, दे विल डेफिनेटली लर्न। तो इस तरह से जो लैंग्वेज है दैट विल बी वाइडन अपॉन और वो आगे बढ़ेगी। ये भी गवर्नमेंट का एक गोल है कि ये भी आगे आने वाले सालों में किया जाए। हाँ जी, 21st सेंचुरी की जो स्टडी होगी दैट इज वी ऑल नो दैट वुड बी ऑन टेक्नो बेस्ड। और क्या क्या होएगा इसमें, एक तो इसमें डिजिटल लिटरेसी होएगी। डिजिटली द पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रन विल बी मोर अवेयर अबाउट द गैजेट्स, मोर अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगे जी, उसमें उसको प्ले वे मेथड में यूज किया जाएगा। आर्ट में उसको किसी भी तरह से इंक्लूड करके उसको एक प्ले वे मेथड से बच्चे की क्लैरिटी की जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। कम्युनिकेशन है, देयर इज वेरी लेस कम्युनिकेशन इन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, उस गैप को भरा जाएगा। वो गैप को किस तरह से भरा जा रहा है, देखो आप 5th क्लास तक दे आर नाउ एम्फेसाइजिंग के लैंग्वेज जो है वो बच्चे की मदर टंग यूज करेंगे। नाउ वी आर मोर कंफर्टेबल विद आवर मदर टंग देन द अदर लैंग्वेज वी यूज। तो बच्चे को भी यही सोच के ही कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स को हम सिर्फ इस तरह से ही बढ़ा सकते हैं अगर a child is very open to speak, a child is very comfortable to speak, only then he can interact with the teacher. So I remember when I was a child, I was not able to speak with my teachers. Why? Because if they were emphasizing that if you want to ask me, you should speak in English. So I was not able. I did not interact with my teachers. So this complication वो अब रिमूव हो जाएगी। नाउ चिल्ड्रन और बच्चे टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं वो भरेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग होएगी जी, क्रिएटिविटी बच्चे की बढ़ेगी। हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चे की है वो उसको समझाई जाएगी। इफ अ चाइल्ड सी दैट देयर इज मेस इज क्रिएटेड इन द जो कॉरिडोर, तो उसको शुरू से ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाएगी कि इफ यू सी अ रैपर इन द कॉरिडोर, नाउ दिस इज योर एथिक्स, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दैट कवर अप एंड पुट इट इनटू द डस्टबिन। तो वो भी बच्चे को उस टाइम पे सिखाया जाएगा। ये भी एथिक्स में कवर होएगा
ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में इट वुड बी मेक क्लैरिटी इनटू द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। तो बच्चे को हेल्थ एंड फिटनेस सिखाई जाएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि वो बच्चा जो है वो कुछ साफ करे वो समझाई जाएगी बच्चों को। एथिक्स से समझाए जाएंगे जी। नाउ व्हाट आर एथिक्स? एथिक्स आर मोरल वैल्यूज, एथिक्स आर गुड थिंग्स व्हिच आर टॉट टू द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स बाय द टीचर्स। एथिक्स उस बच्चे के मजबूत किए जाएंगे। ये ना हो कि बच्चा हमारा जो है वो +2 तक पढ़ गया है बट स्टिल ही हैज नो नॉलेज टू स्पीक टू हिज एल्डर्स, ही डजंट नो हाउ टू टॉक टू अ स्मॉल चाइल्ड। सो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द इमोशंस, वो भी उस बच्चे को सिखाया जाएगा कि आपने बोलना कैसे है, वो एथिक्स उस बच्चे को सिखाए जाएंगे। हाँ जी मैम। होलिस्टिक हेल्थ डाटा साइंस, ये टीचर्स के बिहाफ पे उन्होंने करना है। हाँ जी। year long course during grade 6 to 8, survey and hands on experience of a sampling of important vocational crafts such as carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery making, etc. decided by states and local communities as mapped by local skilling needs। यहाँ पे क्या होएगा कि गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टेट, जैसे कि हमारे पंजाब में अगर पोट्री का ज़्यादा ट्रेंड है, पोट्री ज़्यादा जो आर्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है, अगर गार्डनिंग ज़्यादा है, जैसे पंजाब जो है ये एक फार्मर्स का लैंड है तो यहाँ पे गार्डनिंग बहुत ज़्यादा चलती है, तो इट विल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कि वो किस स्टेट में कौन सा आर्ट जो है वो इंक्लूड करें सो दैट उसको वोकेशनल एजुकेशन में ऐड किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी एकेडमिक और वोकेशनल साइड बाय साइड चलेंगे, 50-50 चलेंगे। तो 50-50 अगर चलेंगे तो अगर 50% एकेडमिक ले रहे हैं तो 6 to 8 क्लास तक किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा? वोकेशनल क्राफ्ट जैसे है कारपेंट्री बच्चे को सिखाई जाएगी, बच्चे को इलेक्ट्रिक वर्क भी सिखाया जाएगा, मेटल वर्क सिखाया जाएगा, गार्डनिंग, पोट्री मेकिंग, और ये सारे कुछ हमारे करिकुलम में ऐड होंगे और वो आएंगे करिकुलम में, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं उनको वो स्टडी करेंगे। और ये किसके द्वारा डिसाइड होएगा कि कौन सा करिकुलम में ऐड किया जाए अकॉर्डिंग टू स्टेट? ये जो है किया जाएगा किसके द्वारा? डिसाइडेड स्टेट के द्वारा और लोकल कम्युनिटीज के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा जो पार्ट है वो ऐड शुड बी एडेड इनटू दिस स्टेट। हाँ जी मैम। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, अभी इंक्रीज्ड एम्फेसिस होएगा वो किसके ऊपर? फाउंडेशनल जो स्टेज है हमारी, फंडामेंटल जो स्टेज है सेकंड तक, उसके ऊपर होएगा कि हम बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ सिखाया जाए। यूज ऑफ वैरायटी ऑफ इनोवेटिव मेथड्स यूज किए जाएं, पजल्स, गेम्स, मैथमेटिकल को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसमें क्या कर सकते हैं वो भी प्लान किया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कोडिंग इन मिडिल स्टेज, जो मिडिल स्टेज है हमारी 6 से above, मैंने आपको पहले ही बोला कि नाउ कोडिंग विल बी एडेड टू इट, 6th क्लास में इट विल बी एडेड। हाँ जी। The one beautiful thing that the NEP has brought up with, that is 10-day bagless period during grade 6 to 8 for students to intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters and artists. What the government is planning कि 10 days बच्चे बैग को लेके ही आए, 10 डेज बच्चे बैग के बिना ही आए, और 10 डेज में उनको क्या सिखाया जाएगा? जितने भी लोकल कारपेंटर्स हैं उनको इस बेसिस के ऊपर डेली वेजेस के बेसिस पे भी हायर किया जाएगा, और उनको कहा जाएगा कि बच्चों को उन्होंने नॉलेज देनी है, पॉटर्स को बुलाया जाएगा, गार्डनर्स को बुलाया जाएगा। तो इस तरह से 10 डेज विल बी गिवन टू अ स्टूडेंट, दोज हु विल कम बैगलेस, बैग नहीं लेके आएंगे, और उनके द्वारा उनको टीच किया जाएगा। ठीक है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू लर्न वोकेशनल सब्जेक्ट्स थ्रू आउट ग्रेड 6 to 12 तक उनको वोकेशनल लर्निंग दी जाएगी। वोकेशनल कोर्सेज ऑनलाइन मोड में भी चलेंगे। पीरियोडिक एक्सपोजर टू एक्टिविटीज आउटसाइड स्कूल थ्रू लाइक मीटिंग लोकल आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन, बच्चों को बाहर भी ले जाया जाएगा। बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि क्राफ्ट्समैन को यहाँ पे बुलाया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि टीच द स्टूडेंट्स, बल्कि उनको उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे भी लेके जाया जाएगा बच्चों को साथ में, ताकि टू गेट द स्टूडेंट्स अवेयर कि हाउ दे वर्क, अपने ही जगह पे ऊपर वो कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में भी उनको अवेयर करवाया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज टू बी ऑफर्ड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के राही ओपन वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे। बाय 2020 एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। नाउ वन थिंग व्हिच इफ यू विल नोटिस के पीछे तो वो कह रहे थे कि
एनरोलमेंट होनी चाहिए, बट नाउ दे आर सेइंग दैट 50% लर्नर्स आने चाहिए इसके अंडर। नाउ द स्टेज दे आर डिफाइनिंग दैट ऑन दिस स्टेज 2025 तक 50% लर्नर्स दे आर डिमांडिंग, बिकॉज क्योंकि +2 के बाद they are supposed to do other courses also. So in the vocational courses they are demanding only 50%. 50% enrollment की गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 50% भी हो जाए enrollment in vocational courses में, that is enough for us. हाँ जी, इंडिया की नॉलेज दी जाएगी जी, इंडिया के बारे में बताया जाएगा, इंडिया की क्या क्या जो वी हैव, कितनी जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग है इंडिया के, इसमें क्या क्या है, जो भी हमारे पिछले एंसेस्टर्स जितनी भी नॉलेज है, जो एंशियंट जितनी भी नॉलेज है, वो भी नॉलेज ऑफ इंडिया की बच्चों को दी जानी चाहिए। नॉलेज फ्रॉम एंशियंट इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है इस मॉडर्न इंडिया के, इंडिया फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड रिगार्ड टू एजुकेशन हेल्थ इन्वायरमेंट में क्या रोल हमारा इंडिया प्ले करता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इंक्लूडिंग ट्राइबल नॉलेज देनी पड़ेगी, इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल ways of learning and specific courses on tribal ethno medicinal practices। हमारा जो इंडिया है that is diverse in medicinal plantation, उसके बारे में नॉलेज दी जाएगी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में, एंड एंगेजिंग कोर्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इन सेकेंडरी स्कूल एज एन इलेक्टिव। और इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक सब्जेक्ट जो है वो क्लासेस में ऐड कर दिया जाएगा, वो ऐड ऑन हो जाएगा, सो दैट अ चाइल्ड शुड बी अवेयर अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसको वो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। competition in schools for learning various topics and subjects through fun and indigenous games के साथ उसको खिलाया जाएगा, और उसको प्ले वे मेथड के साथ, फन मेथड के साथ जो टीचिंग है that would not be a burden on the students in the coming years। अब वो फन वे के साथ, गेम्स की हेल्प के साथ बच्चों को पढ़ाया और सब कुछ कराया जाएगा। वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इंस्पिरेशनल न्यूमेरिटीज ऑफ इंडिया इन साइंस एंड करिकुलम। साइंस में हमारे इंडिया ने क्या क्या प्रूव किया है, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिया इन साइंस, वो भी सारी वीडियोस के राही या किसी भी तरह से बच्चों को उससे अवेयर करवाया जाएगा। Constitutional values will be developed in students। Experts from the Indian Constitution will also be considered essential reading for the students। Knowledge of critical issues facing local communities, states and country and the world। तो basically जो knowledge है on the part of the India, it will be devoted towards the students in the coming years। हाँ जी, हाँ जी। हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी जी, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम किया जाएगा, बच्चों को ये बताया जाएगा कि मेंटली हाउ दे कैन बी स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर काम किया जाएगा। पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में सिखाया जाएगा, और अल्कोहल, तंबाकू के और अदर ड्रग्स के क्या इफेक्ट्स हैं बच्चे को, ये शुरू से ही सिखाया जाएगा। ये नहीं कि इफ दे आर अप्रोचिंग टू द क्लासेस, जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में अगर पहुंच रहे हैं तब बच्चों को सिर्फ इस चीज के बारे में नोन कराया जाएगा। नो, दे विल बी टोल्ड अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स इन द प्रीवियस एजेस, इन द प्रीवियस स्टेजेस। हाँ जी, मल्टी लिंग्विज्म एंड लैंग्वेज लर्निंग, मैंने जैसे कि आपको भी बताया ही है कि मदर टंग में पढ़ाई हो रही है एटलीस्ट 5th ग्रेड तक, और टीचर्स जो हैं वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाएंगे लैंग्वेज के लिए। द स्टेट्स विल हायर द टीचर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, क्योंकि इतने टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं हो सकते हैं एक ही स्टेज में एक ही लैंग्वेज के, तो अलग अलग लैंग्वेजेस के टीचर्स को मंगवाए जाएंगे। हाँ जी, टेक्स्ट बुक्स के ऊपर भी काम किया जाएगा। नाउ द NECP नाउ इज प्लानिंग कि एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जो कि बुक्स एक स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, वो चाहे पब्लिक स्कूल है, वो चाहे प्राइवेट स्कूल है, वो उसमें भी पढ़ाई जाए। तो एक नेशनल करिकुलम बुक्स पे तैयार हो रहा है जी, कि सारी तरफ, अब जैसे कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि इतनी महंगी बुक्स लगा दी जाती हैं, जबकि NCERT भी बुक्स की प्रोवाइड करवाते हैं, बट स्टिल नाउ द स्ट्रेस जो है वो विल बी पेड अपॉन के एक नेशनल करिकुलम ही फ्रेमवर्क में लाया जाए और वो ओवर कर दिया जाए। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, स्टूडेंट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है जी, कैसे वो मेमोराइजेशन स्किल्स
किया जाएगा, डेवलपमेंट स्टूडेंट की लर्निंग की राय कैसे हो रही है ये चेक की जाएगी, और क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम किया जाएगा, और असेसमेंट के जो है अलग अलग लेवल्स एजुकेशन सिस्टम में चेक किए जाएंगे। नाउ असेसमेंट का जितना भी प्रोसीजर है दैट विल कम इन द कमिंग ईयर्स, वो आपको आपके सामने आ ही जाएगा कि कैसे असेसमेंट में चेक किया जाएगा। टेस्ट होंगे बच्चों के, कंडक्ट की असेसमेंट होएगी, बच्चों की स्टूडेंट के डाटा को अच्छी तरह से फीड करके उनको पूरे साल जज किया जाएगा, और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होएगी जी कि क्या बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैम redesigning report cards. If the education system is changing, it is obvious that the assessment plans would also be changed. तो वो भी असेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी जी, रिपोर्ट कार्ड्स बदलेंगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो आएंगी उनके ऊपर लर्निंग कितनी बच्चे ने की है वो आएगा, क्विज कितने उसने पार्टिसिपेट की है वो आएगा, सेल्फ असेसमेंट बच्चे की कितनी है वो आएगा, प्रोग्रेस कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर बच्चा किस किस फील्ड में कितना तेज है वो चेक किया जाएगा, और उसने इंटरेक्शन कितनी की पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, वो भी आएगा रिपोर्ट कार्ड में, और टीचर की असेसमेंट, टीचर क्या सोच रहा है उस बच्चे के बारे में वो भी उस रिपोर्ट कार्ड में आएगा। तो ये सारे डोमेन्स को कैरी किया जाएगा आने वाली रिपोर्ट कार्ड्स में। हाँ जी, असेसमेंट की वो बिल्कुल सेम ही ऊपर जैसे गई है वैसे ही सेम वैसे ही जजमेंट की जाएगी बच्चे की। ये जो नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन बना है इसमें न्यू असेसमेंट पैटर्न्स क्या है, लेटेस्ट रिसर्च क्या है, इसके बारे में पेरेंट्स एज वेल एज द टीचर्स विल कम टू नो अबाउट। फॉर प्रमोटिंग कोलैबोरेशंस बिटवीन द स्कूल बोर्ड्स, स्कूल कोलैबोरेशंस तो आजकल भी चल ही रही है, जैसे हमारे स्कूल के टीचर्स दे आर गोइंग टू अदर स्कूल्स टू कोलैबोरेट विद द पैटर्न्स एंड ऑल द थिंग्स, वो दीज थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन बट दैट फर्दर विल बी एक्सपेंडेड मोर टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन स्कूल एंड बोर्ड्स के बीच में शेयरिंग का काम ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे कि अब भी चल रहा है पर कमिंग ईयर्स में ज़्यादा होएगा। अबाउट शिफ्टिंग देयर असेसमेंट पैटर्न्स को चेक किया जाएगा कि उस स्कूल में कैसे हो रहे हैं, हमारे स्कूल में कैसे हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जज की जाएंगी। हाँ जी, that's all for today's session for the parents. It is so nice that you waited and you heard very patiently. I thank you all on the behalf of Principal Ma'am, and thanks to you.